Morning students. In my previous video, we have discussed basic characteristics of simple harmonic motion. Now today we will study few numericals. We will learn how to solve numericals. See here, first statement is, the statement is a simple harmonic motion is represented by x equal to 10 sine 20t plus 0.5. Write down its amplitude, angular frequency, time period and initial phase. See here, given equation is 10 sine 20t plus 0.5. As if we have taken x projection, यानी हमने जो इक्वेशन ऑब्टेन की थी, क्या ऑब्टेन की थी? y इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस 5. अगर इसी तरीके से हम प्रोजेक्शन x एक्सिस पर लेते तो हमारे पास इक्वेशन होती x equal to a sin omega t plus 5. So comparing the given equation 1 with standard equation a sin omega t plus 5. So now on comparing, here amplitude comes out to be 10, as here these measurements are specified that displacement is in meter. It must be given here. Displacement is in meter and time in second. So when we are comparing, amplitude comes out to be 10 meter. Now omega, this angular frequency comes out to be 20. So 2 pi by t equal to 20. This implies time period is 2 pi upon, this is your 2 pi upon 20, that is pi by 10 second. And here angular frequency is 20. This is 20 radian per second. So amplitude, angular frequency, time period, initial phase. Initial phase, you can compare, this phase is 0.5. So here these are the values which we have obtained by comparing these two equations. So this is the simplest numerical in which standard equation is compared with the given equation. Now next numerical, the shortest distance travelled by a particle executing simple harmonic motion from mean position in 2 seconds is equal to under root 3 by 2 times its amplitude. Determine its time period. See what we have to do in this particular numerical. Basically, shortest distance travelled by the particle from mean position in time of 2 seconds. Time given है 2 seconds. And shortest distance क्या दिया हुआ है? It is equal to root 3 by 2 times the amplitude. Amplitude I am just representing by small a. You can use capital A also. Now determine its time period. तो देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले इक्वेशन लगाते हैं y इक्वल टू a sin ओमेगा t, दैट इज a sin 2 पाई बाई t इंटू टी. अब y की वैल्यू गिवन है रूट 3 बाई 2a इक्वल टू a sin 2 पाई बाई t इंटू टी. a से a कैंसिल, तो ये हो जाएगा आपके पास t की वैल्यू दी हुई है 2 सेकेंड, तो ये हो जाएगा sin 4 पाई बाई t. अब देखिए साइन के टेबल में किस पर्टिकुलर एंगल पर वैल्यू होती है? अंडर रूट 3 बाय 2. दिस इज करस्पॉन्डिंग टू एंगल ऑफ साइन पाई बाय 3. सो बाय कंपेयरिंग दिस दिस विल बी योर 4t बाय कैपिटल टी है यहाँ पर 4 पाई बाय कैपिटल टी. दिस इज इक्वल टू पाई बाय 3. सो टाइम पीरियड यहाँ से कितना हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए. दिस विल बी 12 सेकेंड. सो जस्ट व्हाट वी हैव टू लर्न दिस फॉर्मूला. इसी फॉर्मूले के बेसिस पर हमें y गिवन है एम्पलीट्यूड की टर्म्स में and time is given to be 2 seconds. So just we have substituted the values and obtained time period. Now next numerical. If distance y of a point moving on a straight line measured from a fixed origin on it and velocity v are connected by the relation this one. Here displacement यानी distance and velocity इस relation से combine है. आपको बताना है कि ये जो equation है show that the motion is simple harmonic and also find its time period. See, as per this equation we can simplify it as this one. Now
if I will write it in terms of velocity taking square root on both the sides, so here we will get equation, this is 1 by 2 under the root of 25 minus y square. Now here expression for velocity in standard form is omega under root of, this is your a square minus y square. A is the maximum displacement, that is amplitude. On comparing, omega is 1 by 2, a is a square 25 है तो a कितना हो जाएगा यहाँ से, a will be 5. So correspondingly you can see here that amplitude is 5. And now टाइम पीरियड हमें निकालना है, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, ओमेगा से रिलेट करेंगे तो ओमेगा होता है 2 पाई बाई टी, तो टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा, तो ये 2 पाई अपॉन 1 बाई 2, दिस विल बी 4 पाई. सो टाइम पीरियड विल बी 4 पाई सेकेंड. So this way, by comparing this equation with the standard result, this one velocity का ये result आपको learn करना है as we have derived it in its characteristics. So compare करने से हमें यहाँ पर time period निकाल लिया. Coming to next numerical, a particle executing simple harmonic motion along a straight line has a velocity of 4 meter per second when at a distance of 3 meter from the mean position, and 3 meter per second when at a distance of 4 meter from it. Find the time it takes to travel 2.5 meter from positive extremity of oscillation. So as per this statement, particle has a velocity 4 meter per second when it is at a distance of 3 meter from mean position. So correspondingly, initially displacement or distance is 3 meter when the velocity is 4 meter per second. पहली condition ये है. Second condition क्या given है? When distance is 4 meter from mean position, then velocity is 3 meter per second. तो अब सबसे पहले वेलोसिटी एंड डिस्टेंस को रिलेट करने वाला स्टैंडर्ड रिलेशन हमारे पास क्या है, वाई वी इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ एम्पलीट्यूड स्क्वायर माइनस डिस्टेंस स्क्वायर. अब यूज करेंगे ये वैल्यूज हम इधर, यहाँ पर वेलोसिटी है 4, सो 4 इक्वल टू ओमेगा अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई यानी 3 स्क्वायर दिस वन. सो इसको हम स्क्वायर करेंगे, 16 equal to omega square, this is a square minus 9. Let it be equation 1. ऐसे ही सेकेंड इक्वेशन हम बनाते हैं एज पर दिस डाटा. तो यहाँ पर वेलोसिटी है 3, दिस इज इक्वल टू ओमेगा अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर. सो हेयर टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ द साइड्स, तो यहाँ पर आ जाएगा 9 इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, दिस इज ए स्क्वायर माइनस 16. तो दीज आर द टू इक्वेशंस वी हैव ऑब्टेन्ड. Now what should we do? As we have to calculate time it take to travel this much of distance from either side. तो अब इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, let we divide equation 1 by equation 2. So 16 equal to omega square a square minus 9 divide by 9. Here also omega square a square minus 16. Now here what we will do, just we will simplify it by cross multiplying. So 16, this is your a square minus 16 equal to 9 into a square minus 9. So if we expand it, 16 a square, 16 into 6 minus, this is 256, this is 9 a square minus 81. 16 a square minus 9 a square, this is 256 minus 81. अब 16 minus 9 कितना हो जाएगा, 7 a स्क्वेयर एंड 256 में से जब 81 को माइनस करेंगे तो इट विल बी योर 175. सो a स्क्वेयर हो जाएगा 175 by 7, दिस विल गिव यू 2 into 525, दिस इज 5 स्क्वेयर. सो एम्पलीट्यूड आ जाएगा 5 मीटर. सो यहाँ से हमने एम्पलीट्यूड निकाल लिया है. तो करस्पॉन्डिंगली अब अगर हम इस एम्पलीट्यूड की वैल्यू किसी भी दोनों में एक इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दें तो वहाँ से हम ओमेगा की वैल्यू निकाल सकते हैं. तो ये हो जाएगा 16 इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, दिस इज 5 स्क्वायर माइनस 9, दैट मीन्स 16 इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर 25 माइनस 9, दैट इज ओमेगा स्क्वायर इंटू 16, जिससे हमारे पास ओमेगा की वैल्यू आ गई 1 रेडियन पर सेकेंड.
ओमेगा स्क्वायर 1 हो जाएगा, जिससे हमें ओमेगा इज 1 रेडियन पर सेकेंड. सो अभी डायरेक्ट फॉर्म में हमें ये वैल्यूज नहीं पूछी है. क्वेश्चन क्या पूछा है? जस्ट पे अटेंशन हेयर. यहाँ तक हमने यूज किया है इन दोनों इक्वेशंस को. अब आगे क्या निकालना है? फाइंड द टाइम इट टेक्स टू ट्रेवल 2.5 मीटर फ्रॉम द पॉजिटिव एक्सट्रीमिटी ऑफ इट्स ऑसिलेशन. Now, as per the statement, as the particle is 2.5 meter from the positive extreme position, so displacement कितना हो जाएगा? क्योंकि एम्पलीट्यूड है 5, ये एम्पलीट्यूड 5 है, इसमें से 2.5 कवर किया तो ये हो गया 2.5 मीटर. तो अब यहाँ पर क्योंकि ये एक्स कोऑर्डिनेट की टर्म्स में ले रहे हैं तो हम इसे लिखेंगे x इक्वल टू a cos ओमेगा t. नाउ here x is 2.5, a is 5, cos ओमेगा की वैल्यू 1 इंटू टी. इसीलिए हमने ये दोनों वैल्यूज पहले निकाली हैं. 25/50 इक्वल टू कॉस टी. दिस इज 1/2. सो इट इज कॉस. अब कॉस के टेबल में 1/2 वैल्यू किस पर होती है? π/3 पर. इट मीन्स t विल बी इक्वल टू π/3. तो पाई की वैल्यू होती है 3.14/3. So this is 0.47 second. So it means time. Find the time it take to travel 2.5 meter from the positive extremity of the oscillation. So you have obtained it. So in this equation, as per the given information, velocity and distance. सबसे पहले हम velocity की equation use कर रहे हैं. वहाँ हम क्यों यूज़ कर रहे हैं? ताकि उससे हम एम्पलीट्यूड एंड एंगुलर फ्रिक्वेंसी ऑब्टेन कर पाएँ. फिर डिस्टेंस जो डिस्प्लेसमेंट आपको गिवन है उसके बेसिस पर हम टाइम ऑब्टेन कर रहे हैं. To this next numerical, a particle executing linear simple harmonic motion has a maximum velocity of 40 centimeter per second. See the role of maximum velocity, it is significant, and a maximum acceleration of 50 meter per second square. Find its amplitude and the period of oscillation. अब देखिए maximum velocity, इसका एक्सप्रेशन क्या होगा? This will be omega into a. अब ये वैल्यू गिवन है 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड. एंड maximum acceleration, this is given, this is having value omega square a. मैग्नीट्यूड यही है और वैल्यू गिवन है 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर. दिस इज सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब इन दोनों इक्वेशन को यूज करके एक तो हमें क्या निकालना है यहाँ से? दिस इज आई एम टेकिंग स्मॉल ए, क्योंकि एम्पलीट्यूड को स्मॉल ए लिया है और एक्सेलरेशन को कैपिटल ए से. ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, आप दूसरे तरीके से भी ले सकते हैं. नाउ एम्पलीट्यूड ए निकालना है और पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालना है. सो व्हाट शुड आई डू? लेट वी डिवाइड एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी. So this is your 50/40, that is 5/4. तो अब यहाँ पर देखिए एक्सेलरेशन की वैल्यू है ओमेगा स्क्वायर ए एंड वेलोसिटी इज ओमेगा ए. सो इट इज, दिस मीन्स ओमेगा कम्स आउट टू बी 5/4 रेडियन पर सेकेंड. निकालना क्या है हमें? एम्पलीट्यूड. अब एम्पलीट्यूड अगर हमें निकालना है तो वेलोसिटी की वैल्यू है ए ओमेगा. तो ओमेगा की वैल्यू फाइंड आउट कर लिए, यहाँ से एम्पलीट्यूड निकाल सकते हैं. वी मैक्सिमम है 40, ओमेगा की वैल्यू है 5/4. तो ये हो गया 40 इंटू 4/5. सो इट इज योर 32 सेंटीमीटर. नाउ पीरियड ऑफ ऑसिलेशन. दिस पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, सो टाइम पीरियड के लिए वी विल यूज द रिलेशन ओमेगा इक्वल टू 2π/t. तो t विल बी 2π/ओमेगा. 2 इंटू 3.14. ओमेगा की वैल्यू यहाँ से है 5/4. तो जब इसे आप सॉल्व करेंगे देन इट विल बी 5.03 सेकेंड. सो न्यूमेरिकल इज सिंपल, जस्ट यू हैव टू लर्न दीज वैल्यूज एंड वी हैव डिवाइडेड इट टू कैलकुलेट ओमेगा ए एंड टाइम पीरियड. नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल, a particle executes simple harmonic motion of amplitude 30 centimeter. So this one information is given and time period 4 seconds. What is the minimum time required for particle to move from mean position to point 15 centimeter? तो सबसे पहले स्टेटमेंट को देख के हमें चेक करना है कि क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है. एम्पलीट्यूड गिवन है 30 सेंटीमीटर, टाइम पीरियड इज 4 सेकेंड एंड मिनिमम टाइम निकालना है फॉर पार्टिकल टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर. तो अब यहाँ इक्वेशन लगाइए, y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी. This is a sin 2π/t into t.
अब यहाँ पर y की वैल्यू गिवन है, एम्पलीट्यूड भी गिवन है 30, साइन 2 पाई बाय कैपिटल T टाइम पीरियड गिवन है, t स्मॉल t हमें निकालना है, तो 15/30 साइन पाई बाय 2 इंटू टी, दिस इज 1/2। तो अब साइन की टेबल में 1/2 वैल्यू कौन से एंगल पर होती है, दिस इज एट साइन पाई बाय 6। तो यहाँ कंपेयर करेंगे, पाई बाय 2 इंटू टी इक्वल टू पाई बाय 6, so t will be given by here 2/6, that is 1/3 second. So what result you are using here, this is the result which we are using. Only this result must be known here. So other factors are given. So as per given data, we have calculated time required for particle to move a distance of 15 centimeter. Now next is a particle executes simple harmonic motion of period 8 seconds. After what time of its passing through the mean position will the energy be half kinetic and half potential? So particle execute with a period. Period means time period is given to be 8 seconds. किस टाइम के बाद टोटल एनर्जी हाफ काइनेटिक होगी और हाफ पोटेंशियल होगी, यानी काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू potential energy. So first of all you must learn the formulas of kinetic and potential energy. So expression of kinetic energy is half k, this is a square minus y square equal to half k a square. This is cancelled. So a square minus y square equal to a square. So this implies y square equal to, here it will be y square. There should be formula of kinetic energy half k a square minus y square. Sorry, potential energy के फॉर्मूले में होता है half k y square. a is तो एम्पलीट्यूड, तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा this is 2y square equal to a square. So it means y square equal to a square by 2 and y is equal to plus minus a by root 2. We will take only positive sign, positive value of it. अब हम यूज करेंगे इस वैल्यू को इन दिस इक्वेशन y इक्वल टू a साइन ओमेगा t. दिस इज a साइन 2 पाई बाय t इंटू t. अब y की वैल्यू कितनी है, यहाँ से ऑब्टेन हुई a बाय रूट 2 साइन 2 पाई बाय t कैपिटल T इंटू t एंड a इज ऑल्सो हेयर, a से a कैंसिल हो गया. अब साइन की टेबल में दिस इज 1/√2, तो साइन की टेबल में 1/√2 वैल्यू कौन से एंगल पर होती है, साइन पाई बाय 4 45 डिग्री. तो यहाँ पर कैपिटल T इज ऑल्सो गिवन, सो वी विल पुट साइन 2 पाई बाय 8 इंटू टी साइन पाई बाय 4. तो इट इज साइन पाई बाय 4t इक्वल टू साइन पाई बाय 4. तो अब अगर हम यहाँ देखिए साइन पाई बाय t4 इक्वल टू साइन पाई बाय 2 मीन्स पाई बाय 4t equal to pi by 4. This implies time t is of 1 second. So it means after time of 1 second total energy is half kinetic and half potential. तो basically हमें यहाँ पर main point क्या याद रखना है, expression for kinetic and potential energy. यहाँ से सॉल्व करके हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आई और इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में यूज करके वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्मॉल t. Now this is the numerical which you can try at your home. So I have given it as a homework. A particle is executing SHM of amplitude A. At what displacement from the mean position is energy half kinetic and half potential? तो एक्चुअली देखा जाए तो ये पार्ट हमने इसमें कवर कर दिया है, यानी ये जो फर्स्ट पार्ट हमने किया है यानी काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन, ये ही एक्चुअली हमारा ये वाला न्यूमेरिकल है. सो दैट्स व्हाई आई हैव गिवन इट एज अ homework. So different kind of statements can be there. As per the different statements you must be able to find out what are the given factors and what you have to find. तो सबसे पहले न्यूमेरिकल्स करने से पहले जितनी भी इक्वेशंस अभी तक हमने इस चैप्टर में की हैं उनको एक पेपर पे नोट डाउन कीजिए और स्टेटमेंट को देखते हुए, ये तो जो क्वेश्चंस मैं करा चुकी हूँ उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन अगर आप अनसॉल्व क्वेश्चंस करते हैं तो पहले इन्हीं टॉपिक पे देखिए कि आप न्यूमेरिकल्स करके देखें. तो जो भी स्टेटमेंट आपको अवेलेबल है उसके देखिए पहले हमने जितने भी फॉर्मूलाज किए हैं कि कौन सा कॉन्सेप्ट लगना है, एनर्जी का लगना है, डिस्प्लेसमेंट का लगना है, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी. तो उनके स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज आप एक जगह नोट करके वो सामने रखिए while solving the numericals.
Now one more numerical we are discussing today. At a time when the displacement is half the amplitude, what fraction of total energy is kinetic and what fraction is potential in simple harmonic motion? तो सबसे पहले स्टेटमेंट को समझिए कि हमें टाइम बताना है जिसमें व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज हाफ द एम्पलीट्यूड, यानी y इक्वल टू एम्पलीट्यूड बाय 2, and so correspondingly what fraction of total energy is kinetic energy and what fraction of it is potential energy. तो अगर हम कहें कि टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन होता है हाफ के ए स्क्वायर, राइट, एंड काइनेटिक एनर्जी दिस इज हाफ के ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. तो अब अगर हम यहाँ पर y की जगह ये वैल्यू यूज कर दें तो ये हो जाएगा हाफ के, दिस इज ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 4, दिस इज हाफ के. तो इसमें से इसको जब माइनस करेंगे एलसीएम लेंगे, इट इज 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दिस इज हाफ के, दिस विल बी 3a स्क्वायर बाय 4, सो हेयर इट विल बी 3/4 हाफ के ए स्क्वायर. तो ये एक्सप्रेशन किसका है? टोटल एनर्जी का, जिसको मैं ई सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ. तो ये हो जाएगा 3/4 ऑफ टोटल एनर्जी. दिस इज द फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी. तो यानी हमने बता दिया व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जी इज काइनेटिक. ऐसे ही हमें पोटेंशियल एनर्जी के लिए यूज करना है. तो पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन होता है हाफ के वाई स्क्वायर. हाफ के वाई की वैल्यू हमने लिखी ए स्क्वायर बाय 4, क्योंकि वाई की वैल्यू है a/2. तो यहाँ पे जब हम यूज़ कर रहे हैं तो ये आ गई 1/4 हाफ के ए स्क्वायर. दिस इज अगेन टोटल एनर्जी. दिस इज 1/4 ऑफ टोटल एनर्जी. दिस इज पोटेंशियल एनर्जी. यानी टोटल एनर्जी का 3/4 टाइम तो काइनेटिक एनर्जी है एंड 1/4 पोटेंशियल एनर्जी है. अगर आप इस रिजल्ट को चेक भी करना चाहते हैं तो आप इन दोनों को ऐड करके देखो, टोटल एनर्जी ई आनी चाहिए. 3 + 1 4, 4/4 1, यानी आप इसे ऐड करके देखो तो क्या हो गया, ये ई ही आएगा. इट मीन्स दिस आंसर इज करेक्ट. सो देयर इज नो मिस्टेक इन द कैलकुलेशन. So in this way, just you have to do more practice of numericals. So learn all the formulas, क्योंकि formulas अगर learn नहीं होंगे तो आप numericals नहीं कर सकते हैं. तो पहले आप formulas learn कीजिए, फिर जो solved numerical जो मैंने कराए हैं, solved numerical आपकी बुक्स में है वो ट्राई कीजिए. Then only go to the unsolved numerical. फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द स्टेटमेंट एंड ट्राई टू फाइंड कि आपको गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है. अगर आपको गिवन इन्फॉर्मेशन पता चल जाती है और व्हाट यू हैव टू फाइंड, देन यू हैव टू जस्ट चेक विच पर्टिकुलर फॉर्मूला यू कैन अप्लाई टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. नाउ जस्ट प्रैक्टिस मोर न्यूमेरिकल्स ऑन द कवर्ड टॉपिक. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.